Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Human Resources, and under this chapter, we were discussing what are the factors which are responsible for the uneven distribution of population in the world. And we have discussed about geographical factors first of all, then we have discussed about social factor, cultural factor, and economic factor. So we have done with this topic with this subtopic, the factors responsible for uneven distribution of population. And now today we will start with a new subtopic, and that is population change. Okay, the topic is population change. Okay, so what do we mean by population change? Population change means change in the number of people during a specific time. Okay, change in the number of people during a specific time. It is known as a population change. So what we find if we consider the population of the world or population of any country or of any area, population keeps on changing. It is never stable. पॉपुलेशन में हमेशा चेंज होते रहता है. पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं होता है ना. एंड इफ वी see the history, what we find that the population is increasing. The population has actually increased manyfold. Manyfold matlab so many times it has increased. So there is a figure in your book that is 6.3, figure 6.3, in which you can see how the population of the world keeps on increasing. Here the data is given from 500 BC. Okay, so you will see that in this figure what is shown, that in 500 BC the population of the world was around 100 million. And in as you know, BC and AD, the difference between BC and AD, and I told you so many times, you can imagine it as a number line. zero के इधर नेगेटिव होते हैं, है ना, और इधर प्लस होता है, पॉजिटिव होता है. तो 0 इज द बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट. उसके पहले BC और उसके बाद AD. तो 500 BC में जो है पॉपुलेशन वाज 100 मिलियन. और अगर हम इस 0 को देखते हैं, 0 जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है AD की, तो एट दैट टाइम द पॉपुलेशन वाज 170 मिलियन. सो what you find, how can you interpret this data? From 500 BC to 0, the population increased, है ना, population increased from 100 million to 170 million. This is the interpretation कि population is increasing. Then if you find what happened in 1000 AD, in 1000 AD this 170 million increased to 265 million, है ना. Then in 1500 BC, 1500 AD, it again increased to 425 million. Okay, so this is the trend of world population. It is always increasing. So what we find till 1800, we started from 500 BC, है ना, then 1000, then 1500, okay, till 1800. The population was increasing from 100 million
to 170 million to 265 million to 425 million to 900 million. So what we find that the population is increasing, but after 1800 what we find that there was a sharp increase in the population of the world. जो ग्राफ अभी तक, अगर हम इसको एक ग्राफ पे बनाएंगे तो आई जस्ट टेल यू कि कैसा वो ग्राफ होगा. तो अभी 1800 के पहले तक भी पॉपुलेशन बढ़ रहा था, बट 1800 के बाद पॉपुलेशन में बहुत ही शार्प इंक्रीज आता है. एंड व्हाट वी फाइंड कि विद इन 100 ईयर्स, यानी कि 1800 से 1900 में जब हम जाते हैं तो जो पॉपुलेशन अभी तक 1800 में 900 मिलियन थी वो अराउंड डबल होकर के 1625 मिलियन हो जाती है. 1625 मिलियन. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी ये डबलिंग हो रही है, बट इट इज इन 300 ईयर्स. यहाँ पर ये जो डबल हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल तो नहीं है बट ऑलमोस्ट डबल हम कह सकते हैं. तो ये का सिर्फ 100 साल में ये हो रहा है ना. अब अगर 1900 से 1950 में देखते हैं, इन 50 ईयर्स में क्या डिफरेंस आया. 50 ईयर्स में क्या हो रहा है कि जो अभी तक 1625 मिलियन था वो अब हो गया 2500 मिलियन, है ना. तो 50 ईयर्स में जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, अराउंड 4 + 5 900 मिलियन, है ना. तो ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा आफ्टर 1800. 1800 के पहले भी पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लेकिन 1800 के बाद देयर वाज शार्प इंक्रीज इन द population of the world. And what we find that if we see in the year 1974, like we have data till 2025 जो एक प्रोजेक्टेड है कि क्या होगा. तो अगर 1950 में हम देख रहे हैं कि ये 2500 AD था, तो 1974 2500 मिलियन, है ना. 1974 AD में ये कहाँ चला गया, ये हो गया आपका 2500 से 4000 मिलियन. ओके. और इसी तरह से अगर हम आगे के ईयर्स में देखें, जैसे 1999 में, अब आप देख रहे होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ शार्पली द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. इन जस्ट 24 years देयर वाज इंक्रीज ऑफ 1500 मिलियन, है ना. इसी तरह से अगर हम 1999 में देखते हैं कि कितना पॉपुलेशन हो गया वर्ल्ड का, तो इट्स 6000 मिलियन 6000 मिलियन, है ना. तो फिर से 74 से 84, 84 से 94 एंड देन 99, 25 ईयर्स में फिर से हम देख रहे हैं कि 2000 मिलियन. अभी यहाँ पर 1500 मिलियन बढ़ा था, अब 2000 मिलियन बढ़ गया. तो बढ़ने का जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी हाईली, है ना, वेरी शार्पली. और ऐसा प्रोजेक्टेड है कि 2025 तक वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इट विल रीच 8525 मिलियन. 2025 80 तक ये पहुँच जाएगा 8525. ठीक है. दिस इज द डेटा. एंड नाउ इफ यू draw a graph using this data, how the graph will be, कैसा होगा ग्राफ. अगर हम ऊपर पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं, है ना, एक्स एक्सिस पर, और नीचे ईयर्स को दिखा रहे हैं, तो ऐसे में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा. ऑलमोस्ट इट्स नॉट एक्यूरेट, हम एक्यूरेट, आई एम नॉट ड्राइंग एनीथिंग दिस ग्राफ इन एन एक्यूरेट मैनर. एक आइडिया, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि
कि अगर इस डेटा को यूज़ करके हम ग्राफ बनाते हैं तो हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। तो यहाँ तक तो ऐसे आएगा, ये हम इसको मान लेते हैं 1800 अगर ये है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये शार्प इंक्रीज हो जाएगा, है ना। 1800 के पहले भी बढ़ रहा था, लेकिन 1800 जब पहुँचता है तो ये इंक्रीज ऐसे हो जाता है, जो ऐसे बढ़ रहा था वो ऐसे हो जाता है। दिस इज द ग्राफ, है ना, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो वी फाइंड दैट पॉपुलेशन इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगा तो फिर तो दुनिया खत्म हो जाएगी, द वर्ल्ड विल नॉट एग्जिस्ट, है ना। पूरा ह्यूमन जो स्पीसीज है वही खत्म हो जाएगा। तो पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई दिस 1800 ईयर को ही क्यों, उसके पहले तक हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट स्लोली बढ़ रहा है, उसके बाद पॉपुलेशन बहुत शार्पली बढ़ रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज this is the starting of the modern period, and with the starting of the modern period there was advancement of technology and science, and because of this advancement of technology and science so many new inventions have taken place, and because of these new inventions what happened that first of all industrial revolution happened. So many new products were so many new things were manufactured. Then with the help of science and technology, the production agricultural production also increased. So it led to the abundance of food grains. And not only this, the medical science has also advanced a lot, and because of this advancement in medical sciences, what happened that the diseases which considered to be fatal earlier, now those diseases can be treated. So what happened? The death rate was decreasing. And after 1800, because of technological and scientific advancement, the death rate started to decrease. Here you must understand some new terms like population change की जो हम बात कर रहे हैं, we are talking about population change. क्यों population बदलता है, क्यों population बढ़ता है, why does population increases? There are two main factors. The first we can say birth rate, and the second is death rate. As I told you कि in general population always increases. Death rate हमेशा लो होता है बर्थ रेट के, बर्थ रेट ज़्यादा होता है, डेथ रेट कम होता है, ठीक है। अगर डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगी, बर्थ रेट कम हो जाएगी, तो फिर ह्यूमन स्पीसीज का ही एंड हो जाएगा, है ना। तो ये जो डेथ रेट और बर्थ रेट का के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन birth rate and death rate is known as natural growth rate of population, है ना। जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का फर्क होता है, दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब यहाँ पर हम बर्थ रेट से क्या मीन करते हैं? बर्थ रेट का मतलब है कि पर 1000 जो नंबर ऑफ बर्थ्स है उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। पर 1000 पीपल जो भी बर्थ्स हो रहे हैं, जितने भी बर्थ्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स, दैट इज बर्थ रेट। एंड पर 1000 पीपल जितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट इज डेथ रेट। तो जब हम बर्थ रेट में से बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इक्वल्स ग्रोथ रेट, ठीक है। जब हम बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस करते हैं तो ग्रोथ रेट निकलता है कि किस रेट से ग्रोथ हो रहा है। जैसे हमने देखा ना कि 1800 के पहले तक
पॉपुलेशन बढ़ रहा था बट धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1800 के बाद बहुत ही शार्प बढ़ने लगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि डेथ रेट कम हो गया। डेथ रेट कम हो जाने के कारण ये हुआ। डेथ रेट क्यों पहले ज़्यादा था? क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते थे जो पूरी तरह से फेटल माने जाते थे, फेटल होते थे। अगर वो डिजीज़ हो गई तो फिर बचने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। बट 1800 के साथ ही मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग होती है, एंड मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, and because of this advancement in science and technology, what happened that so many diseases became to be treated, है ना, ट्रीटमेंट शुरू हो गई। तो जिससे लोगों की पहले डेथ हो जाती थी, अब वो उस बीमारी से लोग सही होने लगे। तो इस कारण से डेथ रेट पहला फर्स्ट रीज़न कम हुआ। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। फूड की पहले कमी थी, स्कैरसिटी ऑफ फूड होता था। जितनी पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फूड नहीं होता था, इतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होता था बिफोर 1800। तो जब खाने की कमी होगी तो ऑब्वियसली डेथ रेट बढ़ेगा, है ना। लेकिन 1800 के बाद क्या हुआ कि फूड का अबंडेंस हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेथ रेट डिक्रीज्ड। माल न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, डिजीज़ नहीं हो रहा है। खाने की कमी से क्या होगा? हमारे बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, बॉडी कमज़ोर होगी तो हमें तरह तरह की डिजीज़ होंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो डेथ रेट है वो बढ़ेगी, है ना। तो इस तरह से 1800 के बाद जो शार्प इंक्रीज देख रहे हैं हम पॉपुलेशन में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लोअर बर्थ रेट, लोअर डेथ रेट लो हो गया, ठीक है। तो इस कारण से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया। डेथ रेट जब लो हो जाएगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बर्थ रेट तो ओवरऑल वही बना हुआ था, थोड़ा इंक्रीजिंग ही था। बर्थ रेट कम नहीं हो रहा था, बर्थ रेट स्टैग्नेंट भी नहीं था, बर्थ रेट इंक्रीजिंग था। डेथ रेट पहले बहुत ज़्यादा था, अब डेथ रेट कम हो गया। तो जब डेथ रेट कम हो जाएगा तो फिर हमारा ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे क्यों भाग रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी फाइंड a very high growth rate of population, and this is the condition of population explosion. The rate at which the population is increasing, actually it is the condition of population explosion, ठीक है। And there is one more term which you need to understand in context of this population change, and that is migration. Migration, what is migration? What do you mean by migration? Migration is the movement of people in and out of an area. किसी भी एरिया के अंदर और बाहर जो लोगों का मूवमेंट होता है उसे को हम कहते हैं ये माइग्रेशन, ठीक है। Here you must understand the difference between migration and death rate and birth rate. माइग्रेशन के कारण अगर देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज पीपल आर मूविंग आउट ऑफ वन कंट्री एंड दे आर एंटरिंग इनटू अनदर कंट्री। सो ओवरऑल पॉपुलेशन विल बी द सेम, है ना। किसी कंट्री के पॉपुलेशन में चेंज आएगा बट वर्ल्ड पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। डेथ रेट बर्थ रेट के में जब चेंजेस आते हैं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन बदलता है, बट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हाँ, किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन में चेंजेस आ सकते हैं। लाइक अगर हमारी कंट्री से बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है ना। अब ये जो माइग्रेशन होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। समटाइम्स पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, sometimes people move from one state of a country to another state of that country only. Like we have problem of terrorism in Kashmir, है ना। So what happened that many people who were living in Kashmir, they left that place, they migrated from that place to some other safe place, है ना। तो ये माइग्रेशन दो तरह का हो सकता है, ठीक है। अब माइग्रेशन के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक को हम कहते हैं इमिग्रेशन और दूसरे को कहते हैं एमिग्रेशन।
So what is immigration and what is emigration? Immigration is in, emigration is exit. When people move out of the country, then that is called emigration, and those people who are moving out of the country, they are called emigrants. When people come from outside the country, people come, है ना, तो that is immigration and those people are known as immigrant. ओके, तो ये दो टर्म्स जो है वो माइग्रेशन के साथ एसोसिएटेड है. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. जब हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं तो दैट इज एमिग्रेशन. दोज पीपल हु आर लिविंग द प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट, एंड दोज पीपल who are entering into another country, entering into any country, they are immigrants. That process is known as immigration. Okay, so emigration हो या immigration हो, इससे एक वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, बट हाँ एक कंट्री के पॉपुलेशन में डिफरेंसेस आ जाते हैं. मोस्टली मेनली जो माइग्रेशन होता है वो क्यों होता है? माइग्रेशन के पीछे मेन रीज़न है जो हमने पढ़ा था, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर. दीज आर द मेन रीजंस. आपको अगर कहीं पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलती है तो आप अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं. अगर आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं. तो माइग्रेशन हमेशा लेस डेवलप्ड कंट्रीज, लेस डेवलप्ड एरियाज से मोर डेवलप्ड एरियाज़ के तरफ होता है. ठीक है. और वन मोर थिंग you need to understand that जैसे एक कंट्री के अंदर एक रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में जाते हैं, है ना. the people migrate from rural areas to urban areas. In the similar way, people migrate from less developed countries to more developed countries. Okay, so we will continue with this in the next class.